Ladies and gentlemen, I would like to draw your kind attention, please. I request the police department band to start the national anthem and request all the dignitaries to kindly stand up in honor of our national anthem, please. District and Sessions Judge Srimati Spalda Sangmo ma'am, Honorable Councillors, respected Deputy Commissioner CEO LHC Kargil Shri Rakesh Kumar IS, SSP Kargil Shri Nitin Yadav sir, Director of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Shri Tahir Davi sir, Director Rural Development Department Shri Saeed Sajjad Kadri sir, esteemed district officers, representative of different political parties, religious organizations, members of Bar Association Kargil, invitees, media fraternity, and guests, a very good evening to you all. On behalf of Deputy Commissioner CEO LHDC Kargil, it's my honor to welcome you all to this oath-taking ceremony of the nominated councillor of 5th LHDC Kargil of Shri Riaz Ahmad Khan, Advocate. Today marks an important moment in our democratic functioning. We formally induct the newly nominated councillor into the Ladakh Autonomous Hill Development Council. I would like to take this opportunity to formally request Srimati Spalda Sangmo ma'am, Honorable Principal District and Session Judge Kargil, to grant me the kind permission to start the formal proceedings of the oath-taking ceremony. With your kind permission, ma'am. Now I request Shri Advocate Riaz Ahmad Khan to kindly proceed towards the dais to formally take the oath. Kindly, sir. I I, Advocate Riaz Ahmad Khan, have been nominated as a member of Ladakh Autonomous Development Council Kargil, do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. I would like to extend my warm greetings and congratulations to the newly nominated councillor, Shri Advocate Riaz Ahmad Khan. I would like to extend my sincere thanks to Honorable Principal, District and Sessions Judge, Srimati Spalda Sangmo ma'am, for gracing this occasion. I would like to extend my thanks to Senior Superintendent of Police, AD Information, Executive Engineer, TDA Kargil, District Youth Services and Schools Officer Kargil, Executive Engineer Mechanical Division Kargil, CMO Kargil, Executive Engineer PDD Kargil, Executive Officer Municipal Committee Kargil, ALC Kargil, and others for their unwavering support for making this event successful. I request all the dignitaries to kindly stand for the national anthem again.
सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे इंचार्ज ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज अशोक कोल जी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ताशी खाचू जी और हमारे तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारे सीनियर लीडर एक्स CC LADC ले श्री ताशी गेल्सन जी और हमारे करगिल के जो सीनियर लीडर हैं हाजी इनायत अली जी, हमारे प्रेसिडेंट असदुल्ला मुंशी जी और हमारे एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो अभी सेक्रेटरी हैं, अभी सेक्रेटरी है स्टेट के मोहम्मद अली चंदन जी, और साथ ही साथ जो मेरे सारे गांव के जो मेरे लोगों का मैं सबसे पहले उनके दुआओं का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं इस मुकाम के लिए चुना गया और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। जी सर, अभी आपसे कुछ देर पहले ही मेंबर पार्लियामेंट ने कुछ क्योरीज उठाए हैं कि ये सीट जो है ये वुमेंस के लिए थी, तो बीजेपी जहां दावा करती है कि हम वुमेन को सीट देंगे, तो उन्होंने इस पे काफ़ी ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि हमने एक आदमी को एक MP चुन के दिया है जिसको LHDC एक्ट पढ़ना नहीं आया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो केडीए बन के जो अभी लद्दाख के लिए एक रोड मैप जो तैयार कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं ड्राफ्ट किया। मैं समझता हूं कि जी आपसे पहले छोटा सा एक है कि 2005 में शिया सुन्नी जो हमारे मुस्लिम के सेक्ट्स हैं और बड़े जो हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके तब 2005 में शिया कम्युनिटी को प्रिंसिपल माइनॉरिटीज़ में शामिल किया था और हमारे LHDC एक्ट में किया था। आज देखिए किस्मत का रोना, आज हमारे ही MP निकल के बोलता है कि हम ही प्रिंसिपल माइनॉरिटी में नहीं है, जो कि एक्ट उसको शायद पढ़ना नहीं आया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अफसोस है और अब इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि LHDC एक्ट जिस बंदे को पढ़ना नहीं आया है वो आगे ड्राफ्ट क्या भेजेगा और वो लद्दाख का फ्यूचर जो है केडीए की तरफ से क्या रिप्रेजेंट करेगा, मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा है। और इसके लिए अगर कोई भी अल्ट्रा वायरस या कोई इलीगैलिटी है इसमें, तो देयर इज ए कोड कि हम कोर्ट में अगर कर सकते हैं कोई इलीगैलिटी होगा, तो मैं समझता हूं कि जितना पढ़ा लिखा हमारा MP होगा, जिस हिसाब से अभी तक तो मुझे नहीं लगता था, लेकिन जिस आदमी को LHDC एक्ट पढ़ना नहीं आया है वो आदमी हमारा फ्यूचर क्या ही डिसाइड करेगा और क्या ही वो ड्राफ्ट देगा। अब तो लद्दाख का फ्यूचर ही हमें खतरे में लगता है। और जिस तंजीमों ने, जिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने अपनी कुर्बानियां देके 2005 में प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी में सुन्नीस और शियास दोनों को उसमें इन्वॉल्व किया था, जो एक्ट में लिखा हुआ है, आज हमारा ही कौम का बंदा निकल के हमें ही बता रहा है कि हम ही प्रिंसिपल माइनॉरिटीज में नहीं है। जहां तक वुमेन रिप्रेजेंटेशन का बात है, जो नुमो हकीमा हमारा यहाँ पे आपके सामने है, LHDC काउंसलर जो हमारे नॉमिनेटेड हैं, वो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। और जो अभी ड्राफ्ट हुआ है वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो नए LHDCs में होगा, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंट यार। उसका अभी शायद उनको कानूनी टेक्निकलिटीज का नहीं पता होगा, तो शायद वो इस तरह से बोल रहा होगा। जी शुक्रिया। NC कांग्रेस ने बाइकआउट किया है, इस पे आप क्या कहना सर? जी, बीजेपी के साथ तो उनका हमेशा ही बाइकआउट रहा है, इलेक्शन के दौरान ही बाइकआउट रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों को मैं बता दूं मैं अपना रिजल्ट कि NC और कांग्रेस ने जब हमें बाइकआउट किया तब दोनों मिलके शायद उन्होंने हमें हराया था। तो ये तो उनका ट्रेंड है। अभी बिहार इलेक्शन आपको पता ही होगा, बिहार का रिजल्ट, तो ये तो मतलब सोते जागते उठते बैठते कांग्रेस और NC का तो काम ही है कि बीजेपी को बाइकआउट करना। तो ये कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको आपके लोगों के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि आज तक जो हमारे नॉमिनेशन जो आए थे, जो कभी मतलब मैं आपको कहूँ, शेर बहुत खतरनाक होता है लेकिन जख्मी शेर बहुत खतरनाक होता है। मैं पिछले 10 साल से इस काउंसिल को इंतज़ार करते बैठा हूँ और इस काउंसिल को जितना आज MP साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, मैं जिस एक्ट पे दिया, जिस सेक्शन में दिया, मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ क्या है क्या नहीं है। इंशाल्लाह अभी दिखेगा कि LHDC कारगिल जिस तरह से अभी काम करती थी, तो शायद उनको अब सोच समझ के काम करना पड़ेगा। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा टीम जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे नोमल हैं, और हमारे जो मोस्ट सीनियर हमारे और ऑनरेबल
काउंसलर जो चाह है हमारे संस्कार से प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी हमारे स्टेट में है काश तंजीन लखपत जी भी हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी बहुत अच्छी टीम है और इंशाल्लाह आप दिखाएंगे कि काउंसिल कैसे चलता है। थैंक यू। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय अफसोस हमारा जो एमपी है पढ़ ही नहीं पाया एलएचडीसी एक्ट को। उनको लगता है कि प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी में क्या आता है क्या नहीं आता है, उनको ये पता नहीं। ये अफसोस की बात है। आज जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटी का ये होता है, माइनॉरिटी ऐसे होता है ऐसे होता है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जाके एलएचडीसी एक्ट 1997 वो पढ़े, उसमें लिखा है किस तरह से क्या लिखा है। और हमारे कौम के लिए भी ये खतरा है, जो आदमी एलएचडीसी एक्ट न पढ़ सके वो अभी ड्राफ्ट क्या ही बनाएगा। हमारे लिए खतरा है। अगर उनको लगता है कि कोई इलीगैलिटी है कुछ है तो कोर्ट में जाए, ना कि वहां बैठ के ये बोले कि ये इलीगल है ये इलीगल है। मुझे लगता है शायद उनको पढ़ना ही नहीं आया। और ये इस बात का सबूत है कि अभी हम सुनते हैं कि केडीए एपेक्स जो वहां पे एक खाका देने वाला है, ड्राफ्ट देने वाला है। जिस आदमी को एलएचडीसी एक्ट नहीं पता वो ड्राफ्ट क्या ही देगा। इस बात का भी जवाब दिया जाएगा। इनको लगता है कि आज तक का जो नॉमिनेशन आता था ऐसे होगा, ऐसा नहीं है इंशाअल्लाह।